देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1 ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 26ରେ ଉପକୂଳ ମୁହେଁଇବ, 25 ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏହା ମେ 26ରେ ଉପକୂଳ ମୁହେଁଇବ। ମେ 22ରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ୍ରମେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ। ସେହିପରି ମେ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉପକୂଳ ମୁହେଁଇବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ଏବେଠୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏନେଇ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମେ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମେ 21ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେ 24ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2 24 ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ଆଧାରରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏହି 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କାଲି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ଅର୍ଥରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସାଇକେଲ, ଛତା, ଟର୍ଚ୍ଚ, ଚପଲ, ପାଣି ବୋତଲ, ବ୍ୟାଗ୍, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ସାବୁନ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ, ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନର, ହେଲମେଟ୍, ମିନି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ମାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଏହି ସହାୟତା ଅର୍ଥ ନେବେ। ନମ୍ବର 3 ଡ୍ରାଇଭ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକାକରଣକୁ ମନା କଲେ ସରକାର। ଡ୍ରାଇଭ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକାକରଣକୁ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୃହ ଥିବା ଜାଗାରେ ଟିକା ଦେବ ନିୟମ ରହିଛି। ଟିକା ନେବା ପରେ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ଅବଜରଭେସନ ନିୟମ ରହିଛି। ଡ୍ରାଇଭ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକାକରଣରେ ଏସବୁ ନିୟମ ପାଳନ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକା ଅପଚୟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 20ରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଅନେକ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଫ୍ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜୁଡିସିଆଲ କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 5ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏଥିସହିତ 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ମିଳିବ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ କେବେ ନେବେ ଟିକା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ଟିକା ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବାର 3 ମାସ ପରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି କୌଣସି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପ୍ଲାଜମା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବାର 3 ମାସ
मास पर टीका ग्रहण करेंगे। जदि कौन व्यक्ति प्रथम डोज टीका नेबा परे कोविड संक्रमित होइथांती तेबे सुस्थ हेबार 3 मास पर द्वितीय डोज टीका ग्रहण करेंगे। जटिल रोग में पीड़ित रोगी डाक्तरखाना भर्ती होते किंबा आईसीयू आवश्यक करुथिले तांको मध्य कोविड टीका नेबा पई 4 ରୁ 8 सप्ताह अपेक्षा करने पड़िबो। अन्य पक्षरे स्तन्यपान करुथिबा मां माने टीका नहीं पारिबे। नंबर 8 बात्या संभावना आगुआ पदक्षेप नेबाकू जिलापालଙ୍କୁ निर्देश देले स्वतंत्र रिलीफ आयुक्त। बंगोपसागर में संभाव्य बात्या नहीं राज्य उन्नयन आयुक्त तथा स्वतंत्र रिलीफ आयुक्त अर्थात एसआरसी प्रदीप कुमार जेना समीक्षा करिसंती। काली पुलिस अग्निशम ओड्राफ एनडीआरएफ अधिकारी एसआरसी प्रदीप कुमार जेना आलोचना करिसंती। जिलापाल एसपी मानक सह कथा होई एसआरसी प्रदीप कुमार जेना जिलापाल मानकू आगुआ पदक्षेप नेबा पई निर्देश देइसंती। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार एजे बात्या स्पष्ट होई नाही। एजे बात्यार स्थिति और रूपरेख अनुमान करा जाइनी। 22 रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेला परे रूपरेख जाना पड़िबो। तेबे आगुआ पदक्षेप स्वरूप जिलापाल एसपी मानक सह बैठक करा जाइछि। संभाव्य बात्या पई प्रस्तुति करिबाकू जिलापाल मानकू कहा जाइछि बोली एसआरसी प्रदीप कुमार जेना प्रकाश करिसंती। नंबर 9 डीएसपी सार उपरे सब्सिडी परिमाण बस्ता पिछा 1200 टंका को वृद्धि। केंद्र सरकार डीएफसी सार बस्ता पिछा सब्सिडी परिमाण को 500 टंका परिवर्ते 1200 टंका को वृद्धि करिसंती। तेणु अंतर्जातीय बजार में डीएसपी मूल्य वृद्धि सत्वे यह भारत में पुराणा दर में बस्ता पिछा 1200 टंका बिक्री हेबो। गत वर्ष डीएसपी रो वास्तव दर गोटे बस्ता पिछा 1700 टंका थिला। एथिरे केंद्र सरकार गोटे बस्ता प्रति 500 टंकार सब्सिडी देउथिले। तेणु कंपनी गुड़िक चाषी प्रति बस्ता 1200 टंकार सार बिक्री करुथिले। निकटरे डीएसपी रे व्यवहृत होउतबा फॉस्फोरिक एसिड आमोनिया आदि अंतर्जातीय मूल्य 60% रु 70% को वृद्धि पाइछि। तेणु वर्तमान डीएसपी रो बस्ता पिछा प्रकृत दर 2400 टंका को वृद्धि पाइछि। किंतु कालीर घोषणा परे चाषी माने गोटे बस्ता डीएसपी सार 1200 टंकार पुराणा दर में किनि पारिबे। नंबर 10 मे 31 तारिख पर्यंत बंद रहिबो सूर्य मंदिर। महामारी भयावहता को दृष्टि रे रखी विश्व ऐतिह्य कोणार्क सूर्य मंदिर को पर्यटकों परिदर्शन उपर रोक लग जाइथिला। महामारी आरंभ पर प्राय 1 मास पर्यंत सूर्य मंदिर पर्यटकों पई बंद रहिथिला। मात्र कोविड रो प्रकोप कमिबा परिवर्ते दिनकु दिन अणायत हेबारे लागिछि। एहाको दृष्टि रे रखी एएसआई पक्षरु सूर्य मंदिर को मे 31 तारिख पर्यंत बंद रखिबाकू निष्पत्ति होइथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती निर्देश आसिबा पर्यंत सूर्य मंदिर पर्यटकों परिदर्शन पई बंद रहिबो। नंबर 11 आज 3 जिल्ला रे बंद रहिबो टीकाकरण। राज्य रे उपरमुहा कोविड संक्रमण 10,000 तळकू खसुनी आक्रांत संख्या। एबडी स्थिति रे संक्रमण को रोकिबा पई राज्य रे जारी रहिछि टीकाकरण। किंतु आवश्यक परिमाणर टीका नथिबारु बाधा प्राप्त हेउछि टीकाकरण। जोथि पई आज राज्यर 3 जिल्ला रे बंद रहिबो टीकाकरण। ए जिल्ला गुड़िक हेला बालेश्वर, केन्द्रापड़, जगतसिंहपुर। वर्तमान सुधा राज्य रे 68,12,118 जन टीका नहीं सारिलेनी। नंबर 12 ठकामी रोकवाक बाध्यतामूलक हेब गोल्ड हलमार्किंग। सुना गहणार सुधतर मापकाठी गोल्ड हलमार्किंग बाध्यतामूलक हेब। एहाद्वारा सुना गहना कारबार चली ठकामी बंद हेब बोली कहुଯାଇଥିବା बेले एबडी हलमार्किंग द्वारा गहनार दाम बढ़िबो बोली आशंका करा जाउछि। जून 1 ठारू आपण किणुथिबा समस्त सुना गहना उपरे हलमार्क लेखा रहिबो। अर्थात आपणक गहना केते क्यारेटर ता स्पष्ट होइथिबो। एहाद्वारा आपण जोठारू किणंतु बा जोठारे बिकंतु आपणक कोनोसी असुविधारे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। सुना गहना बा सुनार मूर्ति 14, 18, 22 क्यारेट मिलिबो। गहना उपरे हलमार्क बाध्यतामूलक हेबा परे गहना दोकानी सुनार गुणवत्ता नहीं ग्राहक मानकू ठकी पारिबे नाही। एहा द्वारा आपण किणुथिबा गहना उपरे 4टी चिन्ह रहिबो। बीएसआई मार्क, क्यारेट, हलमार्किंग सेंटर नंबर एवं गहना दोकानर परिचय पत्र नंबर। नंबर 13 जुक्त 2 शिक्षानुष्ठान को डिग्री कॉलेज पृथकीकरण कार्य को त्वरान्वित करा जाऊ कहिले उच्च शिक्षा मंत्री। जुक्त 2 शिक्षा को उच्च शिक्षा विभाग पृथक कर विद्यालय गणशिक्षा विभाग में मिश्रण कर बेले जुक्त 2 शिक्षानुष्ठान गुड़ी को डिग्री कॉलेज पृथकीकरण कार्य को त्वरान्वित करने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार साहू गुरुत्वारोप करिसेंती। इतिमध्य किछि स्थान में जुक्त 2 और डिग्री महाविद्यालय पृथक भाव में कार्य करुछि। तेबे उच्च शिक्षा विभाग अध्यापक अणशिक्षक कर्मचारी जो माने उच्च माध्यमिक विद्यालय अवस्थापित होई कार्य करुछंती सेमानंको पर्यायक्रमे उच्च शिक्षा विभाग को फेरई नियाजिबो जेपरि जुक्त 2 शिक्षानुष्ठान रे शिक्षादान क्षेत्र में कौनसी व्याघात सृष्टि न हुए। एही परिप्रेक्षी रे विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु उक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िकर शिक्षक और अणशिक्षक पदवी पूरण निमंते आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिवे। नंबर 14 राउरकेला रे 18+ वर्गों पई खोलिबा और 4टी टीकाकरण केन्द्र। राउरकेला सहर में 18+ वर्गों कोविड-19 टीकाकरण पई और 4टी केन्द्र खोलिबाकू जाउछि। 20 तारिख रु 2टी केन्द्र खोलुथिबा बेले 24 तारिख रु और 2टी टीकाकरण केन्द्र खोलिबो। तेणु एहाकू मिसेइले सहर में मोट 12टी टीकाकरण केन्द्र हेबो। एही नूतन टीकाकरण केन्द्र
लगी मे 19 बुधवार दिन 11टा पर स्लट बुकिंग आरंभ हेबो। उदित नगर स्थित म्युनिसिपल कॉलेज और सेक्टर 18 स्थित सोशल होम रे 20 तारिखर युववर्गों पर टीकाकरण आरंभ हेबो। सेहीपरि कोइल नगर सी ब्लॉक स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर और स्टील टाउनशिप आमबागान स्थित भंज भवनटारे 24 तारिखर नूतन टीकाकरण केन्द्र चलिबो। एसबू केन्द्र में सकाळ 10टारू अपराह्न 4टा पर्यंत टीकाकरण चलिबो। केवल 18 ରୁ 44 वर्ष वर्गर पंजीकरण करी स्लट पाइथिबा हिताधिकारी को सेठारे टीका दियाजिबो। नंबर 15 यांत्रिक त्रुटि जोगु 2,37,000 मोटरसाइकेल फेरी नेब रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकेल प्राय 2,37,000 मोटरसाइकेल फेरी नेबाकू घोषणा करिछि। एसबू मोटरसाइकेल डिसेम्बर 2020 रु एप्रिल 2021 मध्य बिक्री होइथिला। एसबू मोटरसाइकेल रे थिबा केतेक त्रुटि सजाड़िबाकू कंपनी पक्षरु एही निष्पत्ति निया जाइछि। कंपनी पक्षरु बुधवार दिन जारी एक प्रेस विज्ञप्ति रे कह जाइछि जे डिसेम्बर 2020 रु एप्रिल 2021 मध्य भारत, इंडोनेशिया, फिलिपाइंस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मालेशिया रे बिक्री होइथिबा क्लासिक, बुलेट और मेटेर मॉडल रो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकेल रो इग्निशन कॉइल रे केतेक त्रुटि रहिछि। एही त्रुटि इंजिन रो प्रदर्शन उपर प्रभाव पकाउछि। केतेक क्षेत्र रे यह इंजिन मिसफायरिंग करूछि, गाड़ी रो प्रदर्शन को प्रभावित करूछि किंबा शॉर्ट सर्किट करूछि। कंपनी फेरस्त नैथिबा मोटरसाइकेल गुड़िकर त्रुटियुक्त अंश को सजाड़िबो किंबा बदळाइबा परे पुणी ग्राहकों को फेरई दियाजिबो। नंबर 16 राज्य में दिनक 11,099 नुआ कोविड संक्रमित चिन्हट। राज्य में गत 24 घंटा मध्य 11,099 जन नुआ कोविड संक्रमित को चिन्हट कर खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1460, सुंदरगढ़ 983, कटक 867, अनुगुड़ 552, बालेश्वर 408, बरगढ़ 339, भद्रक 431, बौद्ध 213, देवगढ़ 160, ढेंकानाल 162, गजपति 82, गंजाम 196, जगतसिंहपुर 302, जाजपुर 378, झारसुगुड़ा 307, कड़ाहांडी 299, कंधमाड़ 88, केन्द्रापड़ा 156, केन्दुझर 165, कोरापुट 280, मालकानगिरी 102, मयूरभंज 507, नवरंगपुर 351, नयगढ़ 277, नुआपड़ा 232, पुरी 356, रायगड़ा 170, संबलपुर 547 और सोनपुर 252 जन चिन्हट होइछंती। नंबर 17 ब्लैक फंगस को महामारी घोषणा कले राजस्थान सरकार। कोविड संक्रमण सुस्थ होगा पर लोकों ठारे देखा देउथुबा म्यूकर माइकोसिस बा ब्लैक फंगस रोग को महामारी भाव घोषणा करिसेंती राजस्थान सरकार। यास राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग भी एने अधिसूचना जारी कर देइछंती। चिकित्सा विभाग प्रमुख शासन सचिव अखिल आरोरा द्वारा जारी कर जाइथिबा ई अधिसूचना मुताबक कोविड भूताणु संक्रमितों ठारे देखा देउथुबा म्यूकर माइकोसिस बा ब्लैक फंगस रोगी संख्या दिनक दिन वृद्धि पाइबारे लागिछि। ब्लैक फंगस को संक्रमणर द्वितीय सोपान भाव नजर रखी कोविड संक्रमितों भली ब्लैक फंगस रोगी चिकित्सा कराजिबा नै एभली पदक्षेप निया जाइछि। विशेषज्ञों मतरे कोविड संक्रमण सुस्थ हेउथुबा मधुमेह रोगी ठारे एही रोग अधिक मात्रा रे देखा देउछि। एही रोग संक्रमण फଳରେ रोगी अंध हो जाइथाए। नंबर 18 व्हाट्सएप नूतन गोपनीयता नीति को उच्छेद दाबी करी नोटिस जारी कला आईटी मंत्रालय। मेसेंजिंग आप व्हाट्सएप तार नूतन गोपनीयता नीति को उच्छेद करू बोली सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय पक्षर व्हाट्सएप को एक नोटिस पठा जाइछि। मेसेंजिंग आप व्हाट्सएप को एक सप्ताह समय देइछि आईटी मंत्रालय, तापरे आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कराजिबो बोली सूचित करा जाइछि। व्हाट्सएप पक्षर 2021 रे जारी करा जाइथिबा गोपनीयता नीति को उच्छेद करिबा पई मे 18 तारिख रे नोटिस जारी करिछि मंत्रालय। उल्लेखयोग्य चलित वर्ष जनवरी रे व्हाट्सएप यार व्यवहारकारी को सूचना देइथिला। सेही सूचना रे कह जाइथिला कंपनी एक नुआ गोपनीयता नीति प्रस्तुत करुछि। उक्त नीति रे कंपनी व्हाट्सएप व्यवहारकारी तथ्य को केतेक क्षेत्र रे ग्रुप कंपनी फेसबुक और अन्य मानक सह शेयर करा जाई पारे। नंबर 19 भारत में संक्रमण करुवा कोविड वेरिएंट विपक्ष में फलप्रद होछि अमेरिकीय टीका। जुक्तराष्ट्र अमेरिका रे मिलुथिबा कोविड-19 टीका प्रथमे भारत में चिन्हट करा जाइथिबा मारात्मक वेरिएंट अर्थात गुणसूत्र क्रम परिवर्तित भूताणु विपक्ष में फलप्रद बोली मंगलवार दिन शीर्ष स्तरीय अमेरिकीय स्वास्थ्य अधिकारी माने कहिसंती। भूताणु वेरिएंट B.1.617 गत वर्ष प्रथमे भारत में चिन्हट हेबा परे ताहाको विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न बा चिंता उद्रेककारी प्रजाति भाव वर्गीकरण करिथिला। सेहिबडी व्हाइट हाउस कोविड-19 रो वरिष्ठ परामर्शदाता एंडी स्लाविट कहिसंती जे जुक्तराष्ट्र अमेरिका रे मिलुथुबा टीका भारत में संक्रमण करुथुबा वेरिएंट विपक्ष में फलप्रद हेउछि, तेणु सोभिए टीका नेबा उचित। नंबर 20 ममता विरोध में हाइकोर्ट रे पिटिशन दाखल कला सीबीआई। नारदा लांच मामला रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी विरोध में पिटिशन दाखल करिछि। फଳରେ ममता पई यह नुआ अड़ुआ सृष्टि करिछि। मामला को अन्यत्र स्थानांतर करने लगी सीबीआई पक्षर दाखल होइतिबा पिटिशन रे ममता नाम को जोड़िछि। कारण गत 17 तारिख में कोलकाता रे सीबीआई पक्षर चढ़ाऊ कर जाई 2 मंत्री जड़े विधायकों समेत टीएमसी रो 4 नेता गिरफ करिथिला। एहा परे सीबीआई कार्यालय परिसर रे टीएमसी कर्मकर्ता माने हंगामा करिथिले।
खोद मुख्यमंत्री ममता बानर्जी मध्य सीबीआई कार्यालय को जाई अधिकारी मानक कार्य को विरोध करने सहित साहस अच्छी जदि तांको गिरफ करने को आह्वान करथिले। मुख्यमंत्री एपरी आचरण उपर सीबीआई प्रश्न उठेइछि। अन्यपटे सीबीआई रो एही गिरफ्तारी को टीएमसी बेआईन बोली दर्शाइछि। नंबर 21 प्रधानमंत्री बात्या क्षयक्षति समीक्षा गुजरात पई 1000 कोटी टंकार आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार बात्या तौते प्रभावित गुजरात गस्त करी परिस्थितिर समीक्षा करिसंती। प्रधानमंत्री आकाशमार्गरू गुजरातर क्षतिग्रस्त गिरी सोमनाथर उना अमरेलीर जाफराबाद भावनगर महुआ और ड्यू परिदर्शन करिसंती। परे परे से गुजरात एवं ड्यूरे दिया जाइथिबा रिलीफ और पुनर्वास कार्यक्रमर समीक्षा अहमदाबाद ठारे करिथिले। गुजरात पई से रिलीफ कार्य त्वरान्वित करिबा पई तत्काल 1000 कोटी टंकार सहायता घोषणा करथिले। परे केंद्र सरकार एक आंत मंत्रिमंडलीय स्तरीय दल पठेई क्षयक्षति आकलनर समीक्षा करिवे। आकलन को भित्ति करी परवर्ती सहायता प्रदान कराजिवो। नंबर 22 अमेरिका सीडीसी रो कोविड कटकणा कोहळ अवैज्ञानिक कहिले भारतीय विशेषज्ञ। जुक्तराष्ट्र अमेरिकार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अर्थात सीडीसी कोहड़ करिथिबा कोविड कटकणा अवैज्ञानिक एवं एठारे सेसबु हटेइबा संभव नुहे बोली भारतीय विशेषज्ञ माने कहिसंती। टीका संपूर्ण करिथिबा बा आवश्यक मुताबक टीका डोज नहीं सारिथिबा व्यक्तिविशेष मास्क न पिंधि सर्वसाधारण स्थान में विचरण करिपारिबे बोली गत सप्ताह सीडीसी घोषणा करिबा परे समग्र विश्व आलोड़ित हो जाइथिला। मास्क कटकणा उठै देबा लागि विश्वर बाकी सबु देश मध्ये विचार करिबाकू लागिले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रो अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल कहिसंती कथित अछि अनुन्य 70% जनता शरीर में आंटीबॉडी सृष्टि हेले हर्ड इम्यूनिटी आसे। तेणु वर्तमान परिस्थिति रे भारत में कटकणा कोहड़ करने संभव नुहे। जुक्तराष्ट्र अमेरिका हर्ड इम्यूनिटी हासिल करिथिबार कौनसी वैज्ञानिक प्रमाण एपर्यंत मिली नाही। नंबर 23 पण्यवाही पोत P305 रु उद्धार है 14 जनक शव। सामुद्रिक बात्या तौते प्रवाह कारण मुंबई ठारू अरब सागर प्राय 65 किलोमीटर दूर जलराशि रे पण्यवाही पोत P305 बुड़ी जिबारु 2 दिन पर 14 जनक शव उद्धार कर मुंबई डॉकयार्ड को अणाଯାଇଛି। ଏହି ଅଘଟଣରୁ ପ୍ରାୟ 185 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। बॉम्बे हाई निकट हीरा प्लाटफर्म रे मुतयन होइतिबा एही पोतटी 3 दिन हेब नियंत्रण बाहर को चली जाइथिबा कथा जणे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कहिथिले। P305 रे थिबा कर्मचारी मध्यरु समुदाय 89 जनकर पत्ता मिलू नाही बोली बुधवार दिन विशेषज्ञ सूत्ररु सूचना मिलिछि। एबे मध्य P81 हेलिकॉप्टर एवं तलाशकारी हेलिकॉप्टर सबु समुद्र उपरे तलाश उद्धार अभियान चलैथिबा कथा नौसेनार जणे मुखपात्र कहिसंती। नंबर 24 प्रति जिले में स्थापना हेब कोविड-19 कमांड सेंटर। महामारी संक्रमणर समन्वित मुकाबिला निमंते प्रत्येक जिले में एक कोविड-19 कमांड सेंटर स्थापन करने को टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल अर्थात टिफाक प्रस्ताव देइछि। प्रत्येक जिले में यह केन्द्रगुड़िक आवश्यक कर्मचारी एवं उपकरण सह अन्य भित्तिभूमि स्थापन करने को टिफाक कहिछि। कोविड संक्रमणर द्वितीय लहरी एवं द्रुत गति व्यापुछि एवं पूर्व लहरी तुलन में यह ग्रामांचल को व्यापुथिबारु एभଳି पदक्षेपर आवश्यकता रहिछि। टिफाक कहिछि देशर ग्रामांचल में बसवास करुथुबा लोकमानंकु सठिक सूचना प्रदान करिबा एवं एही महामारी प्रकोपरु रक्षा करिबा उद्देश्य रे संक्रमण हार आरोग्य हार मृत्यु हार औषध जोगाण ऑक्सीजन एवं शଯ୍या उपलब्धता भली सूचना गुड़िकर प्रकृत समय अपडेट करिबार आवश्यकता रहिछि। नंबर 25 बिना नोटिस रे मस्जिद भांगीदेला प्रशासन। उत्तर प्रदेशर बाराबांकी प्रशासन बिना कौनसी नोटिस रे स्थानीय अंचल में गोटे पुरातन मस्जिद को भांगी देइथिबा अभियोग होइछि। एहाकु विरोध करी ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड एवं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड घटनार विचार विभागीय तदंत दाबी करिसंती। तेबे प्रशासन गोटे पुराणा कोठा को कोर्टक निर्देश रे भांगीथिबा सफेई देइछि। लॉ बोर्डर कार्यकारी साधारण संपादक मौलाना खलीद सैफुल्ला रहमानी कहिसंती रामस्नेही घाट तहसील रे थिबा पुरातन गरीब नवाज मस्जिद को प्रशासन भांगी देइछि। कौनसी नोटिस किंबा कौनसी कारण न दर्शाई सोमवार राति रे एहाको भंगा जाइछि। पुलिस मध्य एही समय उपस्थित थिला। मस्जिद को नहीं कौनसी विवाद नथिला। सुन्नी वक्फ बोर्ड तालिका रे मध्य एहा रहिथिला। नंबर 26 पूर्व लद्दाख रे चीन सेनार युद्धाभ्यास को नहीं चिंता। पूर्व लद्दाखर निकटवर्ती केतेक अंचल में चीन सेना युद्धाभ्यास करने को नहीं चिंता प्रकाश पाई। तेबे एने चिंतार कौनसी कारण नहीं बोली सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे कहिसंती। से कहिसंती जे वर्षर एही समय उभय भारत चीन सेना निज निजर केतेक निर्दिष्ट स्थान में युद्धाभ्यास करिथांती। चीन पक्षरु सेहीपरि एक नियमित युद्धाभ्यास करा जाउछि। किंतु किछि मास पूर्वे पोंगांग ह्रद निकटरू होइतिबा सैन्य अपसारण को उभय पक्ष एबे भी सम्मान करुछंती। उभय सेना निजर पूर्व स्थिति आगक बढ़ी नाहांती। सेनाध्यक्षक बयान सत्वे चीन गतिविधि उपरे भारतीय सेना तीक्ष्ण नजर रखिछि। कारण गत वर्ष युद्धाभ्यास करने ना रे चीन सेना पूर्व लद्दाखर केतेक भारतीय अंचल में अनुप्रवेश करने परे दुई पक्ष मध्य एक बड़ धरणर विवाद आरंभ होइथिला। नंबर 27 देश में बढ़ुची कोविड मृत्यु संख्या 24 घंटे 4529 मृत्यु।
गत 24 घंटा मध्य देश में महामारी जनित संक्रमण संख्या 2.67 लाख थिबा बेले मृत्यु संख्या 4529 रही जनापड़ी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार बुधवार सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 2,67,334 नूतन संक्रमण और 4,529 मृत्यु रेकर्ड कर। नंबर 28 कोविड रे आक्रांत होई प्राण हरैले उत्तर प्रदेश मंत्री विजय कश्यप। कोविड आक्रांत होई गुरुग्राम मेदांत हस्पिटाल रे चिकित्साधीन थिबा उत्तर प्रदेश राज्य राजस्व वन्य नियंत्रण मंत्री विजय कश्यपंकर मंगलवार दिन देहांत होई जाइछि। मुजफ्फरनगर अंतर्गत चारथवल विधानसभा आसनर 56 वर्षीय विधायक कश्यपंक मिसई उत्तर प्रदेशर समुदाय 3 जण मंत्री एही मारात्मक भूताणु जोगु प्राण हरैलेणी। गत वर्ष उत्तर प्रदेशर मंत्री कमला रानी वरुण एवं चेतन चौहान संक्रमित होई प्राण हरैथिले। कश्यप हेउचंती कोविड संक्रमणर द्वितीय प्रभाव जीवन हरैथिबा पंचम बीजेपी विधायक। नंबर 29 पुणी बातिल है एशिया कप। जून मासरे श्रीलंका हेबाकु थिबा एशिया कप महामारी कारणरू बातिल कर दिया जाइछि। आयोजक बुधवार यह घोषणा करिसेंती। गत वर्ष यह टूर्नामेंट पाकिस्तान रे आयोजन हेबार थिला, किंतु सेतेबेले मध्ये महामारी कारणरू एहाकु स्थगित रखा जाइथिला। श्रीलंका क्रिकेट बोर्डर मुख्य कार्यकारी आश्ले डिसिल्वा कहिसेंती महामारी को दृष्टि रे रखी वर्तमान एशिया कप रे आयोजन करिबा उचित हेबनी। हुएतो एही टूर्नामेंट आगामी 2 वर्ष पर्यंत होई न पारे, कारण सबु टीम निजर कार्यक्रम निर्धारित कर सारिछंती। लागुछि एशिया कप 2023 विश्वकप रे आयोजित कराजिबो। शीघ्र एशिया क्रिकेट संघ यार आनुष्ठानिक घोषणा करिबो। नंबर 30 2022 रे भारतीय क्रिकेट दलर बांग्लादेश गस्त। भारतीय क्रिकेट दल आसंता 2022 रे सीरीज खेलिबाकू बांग्लादेश गस्त करिवे। 2015 परवर्ती समय यह भारतीय क्रिकेट दलर प्रथम गस्त हेबो। पूर्वरु 2014-2015 रे भारतीय दल 2 थर बांग्लादेश गस्त करिथिला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पक्षर प्रसारण अधिकार बिक्री जना जाइछि जे 2022 नवेम्बर में भारतीय दल बांग्लादेश रे पहुंचीबो। दुई दल सेठारे 2टी टेस्ट मैच और 3टी एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलिबे। 2015 परवर्ती समय बांग्लादेश क्रिकेट दल 2 थर भारत गस्तरे आस्थिबा जना जाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।